سلطان کی جاگیری کے ایک ماتر وارثدار خلیل کا آج نکاح ہوا تھا۔ پورے شہر میں ایک سامانیہ ویکتی مانا جانے والے سلطان نے اپنے شوق سے آرمی جوائن کی تھی۔ نہ جانے کتنی بار موت کو چکمہ دے کر وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ جب وہ ریٹائر ہوا تو اس کی شریر پر گولیوں کے 40 ثابت نشان تھے۔ خلیل جیسے سلطان کا ہی پرتیک تھا۔ سانولا سا رنگ، گول چہرہ اور جھیل سی آنکھیں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی لائف اسٹائل سب سے ہٹ کے تھی۔ اپنی مرضی کے مطابق وہ جیتا تھا۔ ایک راجکمار جیسی اس کی زندگی تھی۔ بن مانگے سب کچھ اسے حاصل تھا۔ گلشن سے نکاح بھی اس کی اپنی مرضی سے تھی۔ سب کچھ کتنا جلدی ہو گیا تھا، وہ تو نہ جانے کتنے دلوں کا ارمان تھا۔ جب وہ اپنی کھلی باڈی کی لینیا کو لے کر لانگ ڈرائیو پر نکلتا تھا تو لڑکیاں اس کی ایک جھلک کو ترس جاتی تھی۔ سنہرے گھنگریلے بال اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے، مگر سب کا دل توڑ کر اس نے گلشن کو چنا تھا۔ گلشن خدا کے دربار سے نکلا وہ نایاب ہیرا تھی جسے تراشنے میں میرے رب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے بدن میں سنگ مرمر سی لجا تھی۔ چندرما کے تیز پونج جیسی چمک اس کے روپ میں تھی۔ کوئی اپسرا کی طرح غضب کا نور تھا اس کے چہرے میں، اور اس نورانی چہرے نے خلیل کے دل و دماغ میں ایسی کھلبلی مچائی کہ آخر اس نور نظر کو اپنی نظروں کا سکون بنا لیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اب تک خلیل کو اپنے دوستوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ سب طرح طرح کی اس سے مانگ کر رہے تھے۔ وہ کوئی راجکمار سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بہت ہی مہنگی خوبصورت تاروں سے بنی ہوئی جالی والی شیروانی پہنی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کسی برانڈ کمپنی کا مہنگا اسمارٹ فون تھا، جس سے وہ بار بار ویڈیو کال کر کے گلشن کو پریشان کر رہا تھا۔ ایک بار گلشن کا میسج بھی آ گیا تھا، اب کتنا ترساؤ گے میرے راجا؟ خلیل نے رپلے دیا، بس صبر سے کام لو میرے دل کی سوکھی دھارا میں بہنے والے جھرنے۔ جانتے ہو نا میں جھرنا ہوں، اور آپ نے مجھے اپنے دل میں باندھا۔ نہیں تو گلشن تم وہ جھرنا ہو جو میری سوکھی زمیں کو بھگو کر تا عمر رکھو گی نا؟ ہاں جی، آپ چلے آئیے، آپ کو بھگونے کی شروعات کر لوں۔ دوستوں کے بیچ بھی گلشن کی باتیں پڑھ کر اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارتی ہنسی ابھر آئی تھی۔ بھاری بھرکم زیوروں میں گھوم رہی عورتیں کسی رجواڑی ٹھاٹ کی جھلک دکھا رہی تھی۔ خلیل اب گلشن کے پاس جانے کو بے قرار تھا، مگر دوستوں کو چھوڑ کر کیسے نکلتا؟ خلیل کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی چچیری بہنیں گلاب کی طرح کھلا ہوا منہ لے کر اس کے سامنے پیش ہوئیں۔ اب کتنی دیر بیٹھے رہنا ہے؟ چلو دوستوں سے کل باتیں کر لینا، بھابھی انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں نے خلیل کا ایک ایک ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کر دیا۔ خلیل نے اپنے دوستوں پر ایک شرارتی نگاہ ڈالی اور وہ چل پڑا۔ اس کے دل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ گلشن کے دیدار کو ترستا اپنی بے حیا آنکھوں کو جھکا کر وہ چل رہا تھا۔ دونوں بہنوں نے بیڈ روم کے پاس جا کر اسے اندر دھکا دے دیا۔ ذرا سا لڑکھڑا کر خلیل سنبھل کر دروازہ لوک کر کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ پھولوں سے سارا کمرہ سجایا گیا تھا اور طرح طرح کے پرفیوم سے ہوا مہک رہی تھی۔ ان کے بیڈ کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا اور اس پر موگرے کے سوید پھولوں سے دونوں کے نام اچھی طرح سے لکھے گئے تھے۔ خلیل دیکھتا ہی رہ گیا۔ جودھ پوری چنری کے گھونگھٹ سے دونوں آنکھیں شرم سے لال ہوتی ہوئی خلیل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک معصوم سا چہرہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ٹکر ٹکر دیکھتی آنکھوں میں جھانک کر خلیل شاعرانہ انداز میں بولا، قتل عام کر کے رکھا ہے ہمارے جگر کو، اس پہلو میں سما لو تو سکون آ جائے۔ ایسا ہے کیا؟ گھونگھٹ سے کوئل کی آواز نکلی۔ تو پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟
खलील उफनते हुए रूप के जलबे को तराशता हुआ उनके करीब बैठा। आज कोई शिकायत नहीं, न गिला कर, मिटने दे मेरी हस्ती इस तरीके से मिलाकर। शर्म से गुलशन लाल हो गई। उसके करीब बैठकर खलील ने जन्नत का नज़ारा करना चाहा। तब उसने मुलायम हाथों से खलील को रोकते हुए कहा, गुलशन अपना नज़ारा दिखाएगी, मगर हमें भी कुछ चाहिए। खलील ने कहा, इस जान से ज़्यादा क्या मांगोगी? तो फिर गुलशन ने कहा, आपकी जान तो वैसे भी हमारी है, बस एक वादा करो। खलील ने हैरत से उस नाचीज़ को देखा और कहा कि क्या? कि आज के बाद आप सिगरेट को नहीं छुओगे। खलील उसकी मांग पर हैरान रह गया। गुलशन का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने कहा, जिस दिन आपका यकीन टूटे, हमारी सांसें रुक जाए। गुलशन ने कहा, हाय अल्लाह, ऐसा मत बोलो, आज के दिन भी मुझे रुलाओगे। खलील ने उसे अपने सीने से लगाया। चांद से चेहरे की झलक पाकर उसका रोम रोम अपनी किस्मत पर शुक्रगुजार था। उसने गुलशन की पलकें चूमी, फिर उसके चेहरे को इत्मीनान से देखा। अपने हाथों से वो उसके गहने उतारने लगा। सारे गहने बारी बारी से उतारे, फिर दुल्हन के जोड़े को उतारने उसकी पीठ की ओर झुका। साइड पर टेबल पे रखा हुआ दूध का गिलास उठाकर गुलशन ने खलील के होंठों पर लगाया। उसकी आंखों में देखता हुआ खलील दूध पीता रहा। दूध पी लेने के बावजूद उसकी आंखों में प्यास वैसी ही थी। गुलशन का जोड़ा उतार लिया। धीमे से उसने उसकी चोली सरका ली। अब वो सिर्फ अंता वस्त्रों में थी। उसके सब्र का बांध मखमली बदन को देखकर टूट गया। उसने अपने होंठ वो शरबती होंठों पर रखकर शिकायत मिटाने झुका कि एक जबरदस्त धक्का खलील को लगा। धक्का उसे गुलशन ने दिया था। एक ही धक्के में वो उछलकर बेड के नीचे गिरा। वो अविश्वास भरी निगाहों से गुलशन को देख रहा था। ये कैसा मजाक हुआ? वो अपनी जगह से उठने जा रहा था कि गुलशन चिल्लाई, मुझे छूने की गुस्ताखी भूल से भी मत करना, खाक में मिला दूंगी तुझे। ये तुम क्या कह रही हो गुलशन? तुम मेरी बीवी हो। खलील की बात पर जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो, ऐसे उसने मुंह से डरावनी आवाज़ निकाली, बदतमीज़, ये हुस्न तेरा गुलाम नहीं है। घड़ी भर पहले अपने लिए तड़प उठने वाली गुलशन का ये बदला हुआ रुख उसको हैरान कर देने वाला था। तेरे नापाक बदन को मुझसे दूर रख, छूना मत मुझे वरना। उसकी चेतावनी से खलील कांप उठा। गुलशन ने धक्का देकर खलील को नीचे पटक दिया था और खलील गुलशन में आए अचानक बदलाव से काफ़ी हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो अपने ख्वाबों की मलका उससे अपनी जान लौटा रही थी, फिर अचानक उसको क्या हो गया? क्यों उसने ऐसी बात कही कि ये हुस्न तेरा गुलाम नहीं, अपने नापाक जिस्म को मुझसे दूर रख। वो खुलेआम धमकी दे रही थी कि अगर उसको छुआ तो उसे खाक में मिला देगी। कुछ तो लोचा था। गुलशन कभी ऐसा बोल नहीं सकती, वो मेरी जान है, खलील सोच रहा था। कब से वो हुस्न की मलका खलील के आगोश में समेट जाने को बेताब थी। अपने यौवन की बेमिसाल दौलत को खलील के कदमों में रख देना चाहती थी। हुस्न के अमृत कुंभ का कतरा कतरा उसकी तृप्ति के लिए निछावर कर देना चाहती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। खलील भौचक्का सा रह गया था। वो डरते डरते फूलों से सजी हुई बेड पर बैठा। अरे तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? अचानक गुलशन का रुख पलटा। अब किस बात की देरी है? शर्म आ रही है आपको? अभी कुछ देर पहले तो शायराना अंदाज में मुझे अपने आगोश में भर लेना चाहते थे। मेरी रुसवाई तो आपसे पल भर भी सही नहीं गई। अब आ भी जाओ, इन नसीली आंखों में खो जाओ। एक खुला हुआ रूप कयामत ढा रहा है और आप हैं कि एक शरबती होंठों के जाम पिए बगैर बुत बनकर बैठे हो। गुलशन खलील को फिर से खुला आहन दे रही थी।
मगर कुछ देर पहले जलवा खलील ने देखा था, वो हरकत दोबारा होने की संभावना को नज़रअंदाज न करके खलील घबरा रहा था। उसका गोरा भूरा भूरा बदन खलील के मन को जला रहा था। कितना बदनसीब था उस वक्त। एक और बड़े सबाबे हुस्न खलील की रूह से मिलने को तैयार था। एक और सबाबे हुस्न खलील के रूह से मिल जाने को तैयार था। खलील उस उफनते जलबे को छूने से घबरा रहा था। क्या हुआ? खलील को लगा जैसे गुलशन को कुछ पता ही नहीं था। उसने जो हरकत की थी उससे वो बेखबर थी। फिलहाल वो गुलशन को कुछ कहना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने गुलशन को सिर्फ इतना कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेबी, जाओ, आज का दिन आपको बख्श दिया, मगर कल आपको नहीं छोड़ेंगे। 2 दिन का इकट्ठा मज़ा लूटेंगे। खलील की बात सुनकर गुलशन का चेहरा फीका पड़ गया था। अब अचानक मेरी जान को क्या हुआ? मेरे जिस्म में आग लगाकर पलटी मार ली। मार डालोगे मुझे मेरी जान, ऐसे तड़पा तड़पा कर। पर ठीक है, आपकी तबीयत नादुरुस्त है तो आराम करो। वैसे भी गुलशन सिर्फ आपकी है, जब चाहो आप अपनी ज़िंदगी महका सकते हो। उसने खलील के तेज़ोमय चेहरे को चूमा। खलील बेबस होकर उस गुलाबी मखमली अंग की मलिका को देखता रहा। उसके अंतावस्त्रों से उजागर हो रहे बक्ष स्थल की गोलाइयाँ को देखता हुआ वो बेड से उठा। उसको डर था कि कुछ देर और गुलशन के बगल में बैठा रहा तो फिर वो अपने मन को नहीं रोक पाएगा, और अब दोबारा वो जलील होना नहीं चाहता था। सामने दीवार को सटाकर एक मखमली सोफ़ा रखा हुआ था, जिस पर कोई सोना चाहे तो आराम से सो सकता था। खलील जब तकिया लेकर सोफ़े की ओर बढ़ा तो गुलशन नाराज़ हुई। अपनी नाराज़गी उसके शब्दों में उभरी, जनाब शायर साहब, आप मेरे बेड के पास सो सकते हैं। एतबार रखिए, रात में कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूँगी। ना रे, खलील ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कहीं आप मेरा रेप कर दोगी तो? खलील की बात सुनकर गुलशन ने मीठा गुस्सा जताते हुए तकिया उठाकर खलील को दे मारा। रेप करने को जी चाहा तो वहाँ आकर भी करूँगी, समझे मेरे बुद्धू मियाँ। फिर वो अपनी बेड पर ऐसे लेटी कि खलील का चेहरा अपनी निगाहों में रहे। खलील भी न चाहते हुए सोफे पर लेटा था। दोनों और एक दूसरे को उलझन के साथ देख रहे थे। गुलशन समझ नहीं पा रही थी कि अचानक खलील ने उससे दूरी क्यों बना ली, और खलील सोच रहा था कि मेरी गुलशन मेरी होकर भी मेरी नहीं थी। आखिर क्या राज था? तकरीबन रात के 1 बजे का वक्त था। अपनी सुहागरात के दिन अपनी बीबी अंतहावस्था में आबोट यौवन का खुला दीदार कराती लेटी हो, वहाँ उसे नींद कैसे आनी थी? वो करवटें बदल रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद गुलशन अभी अभी सोई थी कि अचानक उसकी बॉडी में हरकत हुई। उसने अपने पैरों को मोड़कर घुटने को ऊपर उठाया। खलील हैरत से गुलशन को देखने लगा। गुलशन के चेहरे पर नशीली मुस्कान थी, उसके होंठ खुलकर चिपक रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया और फिर चेहरे को सहला रही थी। वो बार बार अपनी गर्दन ऊपर उठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बदन के साथ खेल रहा हो, कोई हल्के हल्के उसकी पूरी बॉडी को सहला रहा हो। और गुलशन अपना आपा खो रही थी। वो अपने पूरे बदन को बार बार मोड़ रही थी। फिर उसका मुंह खुला। उसने दर्द को महसूस किया, मीठे दर्द को जो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो बार बार अपने पैरों को उठा रही थी। खलील उसकी हरकतें देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुलशन अपनी बेड पर अकेली नहीं थी, कोई उसके साथ मज़ा कर रहा था और वो मदहोश होकर बाकायदा उसे साथ दे रही थी। खलील को काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हुई उसकी। अपनी मलकाए हुस्न का बदन लुटने का एहसास हो रहा था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद की स्टोरी हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।